से निकले शब्द हैं बुद्ध और बौद्ध। बुद्धि का आशय यहाँ विवेक से है। कहा गया है कि जिसका विवेक जाग गया वह बौद्ध है। इसी विवेक को जगाने की प्रक्रिया है मन की प्रशिक्षा। इसका अनुपालन करना ही बौद्ध हो जाना है। इसी प्रशिक्षा अर्थात विशिष्ट शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बौद्ध गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे 5 दिवसीय अभियान के साथ असम पहुंचे। यह दौरा मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों का था। तो आइए शिराब सांको सोसाइटी की इस प्रस्तुति में अगले 7 दिनों तक इसकी कड़ियां देखते हैं। धर्म सदैव मन की शांति के लिए है। मन की शांति को अपनाकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सभी धर्मगुरुओं ने इसी सूत्र को अपनाया और लोगों से भी अपनाने को कहा। गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे भी इसी कड़ी के सूत्रधार हैं। मन का दायरा, सोच का दायरा हम अगर बढ़ा दें तो यह संभव है कि हम करुणा एवं मैत्री को पा सकते हैं। दरअसल हम सुनने और देखने का काम कानों और आंखों तक ही सीमित रख देते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ पाते, बांट नहीं पाते, अपना नहीं पाते। पूर्व की भांति गुरुवर ने आज की धर्म सभा में उपस्थित लोगों को इसका पाठ पढ़ाया। गोलाघाट जिले के सरुपाथर के राजा पुखरी बुद्ध विहार और उरियाम घाट गोनपा में ध्वजारोहण के उपरांत गुरुवर ने सफलता के ऐसे कुछ सूत्र बताए। Lama hitam konjok sumla siap suci. Lama hitam konjok sumla siap suci. Lama hitam konjok sumla siap suci। हमारी अगली प्रस्तुति में आप देखेंगे कि गुरुवर ने चुरगाजान गोनपा में वहां के धर्मानुरागियों को कौन-कौन से गुर बताए। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Tastele and Namaste. 4th of January 2011, Tuesday and 30th lunar day, 11th month. The elemental combination is fire water, which is a bad elemental and brings disharmony and are capable to bring separation among friends and relatives, may bring diseases and ill health. Not a good day for shifting of residence or home. Starting of new business and sending parcel etc. are not good for today. And since it is Chi Namgu, so it is not auspicious for almost all of activities. Particularly, it is a bad day for the animals who are born under the bird and monkey signs. The day itself is though good for raging wars, fighting court cases, asking for debts and adopting new pets. Favorable for coronation of military personalities, to demolishing of all home or houses, doing surgical works etc. are good for these days. Particularly a good day for snake and house, since Pumtong or empty was in its direction. Therefore, doing of or important activities at its direction should be avoided. 5th of January 2011, Wednesday and first lunar day of the 11th month, and it is best day for the people who are born under mouse and pig. The elemental combination is water and water, which is a good one and hence brings strength in life, and it is good for marriages and family matters, learning musical instruments, starting of new home
and digging of well or pump, etc. are good on these days. And starting of business and plantation of trees and flowers can be also good in this day. But since it is drawing in Namgu, avoid inventing gas at home. In addition, the Lord of Sadak, Simpung, is also present in this day. Thus, undertaking journey may not be a good, and taking out of dead bodies, waving flags, sowing seeds and flowers, etc. are not favorable on this day. Particularly, the people who are born under the horse or snake are not a good day. Phumdong or empty was is at east direction, so important activity should not be done while facing east. 6th of January 2011, Thursday, second lunar day of 11th month. And this day is best for people of tiger and rabbit. The elemental combination is earth wind, which is unfavorable and hence brings discords and are capable to lead loss of one's substances and riches, or may thief or robbery, etc. Your works, etc. may get delayed, especially bad for studying for business matters as it is Tsongi Namgo. The day itself is good for studying, learning, building of statues or other religious related works, fire puja and burning offering. Sowing seeds to fields or garden, etc. are favorable, whereas it is not a favorable day for construction of roof, fighting for court cases, and a bad day if catches illness. Especially bad day for those people who are born under the ox, sheep, dragon, and dog animal signs. Phumtong or empty was is facing east direction, so important activities should not be done while facing eastward. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. तब अपने आप को एक महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ हैं और हमारा ये जिंदगी कितना महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण जिंदगी को हम सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा और सही दिशा में हम लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आप ऐसा ना सोचें, अगर आपकी जिंदगी सफलता ना हो धर्म की दृष्टि से, तब क्या कहते हैं? पहले पूर्व काल के जो धर्म गुरुओं ने कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? जीवा सामने लो यीशु सोहो होता है। जो बच्चे का एक मन लेकर तो कहते हैं कि हम अभी बच्चे हैं, जब बड़ा होंगे सामचे से यीशु काल करेंगे, परसों करेंगे, जब बड़े होंगे तो इस तरह से जो अभी तो बच्चे हैं बोल के 20 साल चला जाएंगे, इसके बाद में चलो आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, इस तरह से 20 साल चला। तो आपका आयु कहाँ पहुंचा? 40 वर्ष। फिर 40 वर्ष के बाद में धीरे धीरे ताकतें कम होते जाती है, बुढ़ापा शुरू होता है। तब फिर क्या सोचने लगता है? अब तो छोड़ो यार, इस जिंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब नेक्स्ट जन्म के लिए आप प्रार्थना करेंगे। तो अभी क्या हुआ? तुम्हारे सारे की सारी जिंदगी तो बर्बाद हो, अंत में रिजल्ट तो वही हुआ, पछतावा में आपकी जिंदगी खत्म। तो इसीलिए धर्म में क्या कहते हैं? अच्छी कार्य के लिए, धर्म के लिए काल के सपना मत देखो, आज भी थोड़ी देर में करेगा नहीं, अब करना है, इसी वक्त करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब, किसी को भी गारंटी नहीं है कब हमारे सांसें बंद हो जाए।
अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं भाषण दे रहा हूँ या प्रवचन सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या पता हम बोलते बोलते भी मेरा सांस बाहर निकल के फिर अंदर ले सकते, किसी को गारंटी नहीं है। एक बार मैंने टेलीविजन में देखा था, वो सजन का नाम याद नहीं, वो बड़ा एक फेमस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते करते बोलते बोलते आधा बोल करके उधर ही गिर, इसके बाद हॉस्पिटल में लेके उसको मृत्यु हुई। तो अगर इसी तरह का ही हमारी जिंदगी है तो फिर हम काल के इंतजार करके तो फायदा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप 360 डेज को अंदर में जॉब करके हमने क्या कर रहे हैं थोड़ा छानबीन करें, अच्छे काम क्या कर रहे हैं, बुराई काम कर रहे हैं, अच्छे सोच कितने हम लेके जा रहे हैं, बुराई सोच कितने आ रहे हैं, तब जाकर के हिसाब लगाने से तब पता लगेगा कि हमारी जिंदगी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे जैसे अमीर बन जाए, कुछ बन जाए, भगवान बुद्ध जी का मान लीजिए सोना का चांदी का प्रतिमा लगाए और गोम्पा को इस ढंग से बनाए, करोड़ों रुपया से देखने से लोग को महल जैसे लगे, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो मन में सारे पापों से भरा रहे, तो उस दिन भगवान बुद्ध जी का शासन गायब है, वो शासन नहीं है। तो इसीलिए उस शासन को कायम रखने के लिए हम सब लोग कोशिश करना है, और वो शासन को कायम रखने के लिए हम भगवान बुद्ध जी का कोई सेवा कर रहे हैं, उनको हम बहुत धन्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी को हम धन्य करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्व ज्यादा प्राप्त हो चुका है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो बेचारे नहीं है। उनके लिए हम धन्य करें, उनके लिए सेवा करें, कोई आवश्यकता नहीं। सेवा अपने के लिए चाहिए, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए, हम तो दुखों में फंसे हुए हैं ना, वो तो नहीं फंसे। तो इसीलिए इस चीज को भी ध्यान में रख करके अपने को दुखों से मुक्ति के लिए इस शासन को रखना है, उस पथ पर चल करके, भगवान बुद्ध जी के दिखाए हुए राह पर चल करके, तो हम बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए केवल विश्वास करने से नहीं होगा, जब सुचय करने से नहीं होगा, ध्यान करो, अध्ययन करो, सीखो, कुछ पढ़ो, और जैसे हमारे यंग जनरेशन जो लोग अभी स्कूलों में जाकर के पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, उसके साथ साथ में अपना धर्म के किताबें मांगो, आजकल हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, तो कुछ जानो, ठीक है ना। और तीसरा शारीरिक डेवलपमेंट, शरीर भी अच्छा होगा, ये तीन कॉम्बिनेशन जब होगा तब वो इंसान समाज के लिए भी यूजफुल होगा, और वो इंसान हमारे धर्म के लिए भी वो प्रचारक बन सकता है, अच्छे लोगों को प्रभावित कर सकेगा, और उसके माध्यम से हमारे छोटे छोटे समाज का सेवा भी होगा। तो इसलिए इस दिशा में आप लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। और अंत में मैं 2-3 मंत्र का ब्लूम या बोल सकता है, और हम लोग एक साथ गाएंगे, उसको आप लोग दोहरा दीजिएगा ताकि आप लोग के बीच बीच में कम से कम वो कर सके। और ये किताब देखो, इसका मैं पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, अभी समय नहीं है। इधर में 8 लाइन है, माइंड ट्रेनिंग, कैसे हमारा माइंड को ट्रेनिंग देना है, कैसे सोचने का एक हम आदत डालना है। जैसे कि अभी हमारा सोचने का आदत क्या है, बिजनेस करो, अमीर बनो। आजकल बड़ा गड़बड़ शिक्षा है, आजकल शिक्षा स्थानों में भी बोलते हैं तुम सबसे आगे निकलना है, तो इसलिए तुम कंपटीशन में ये करो वो करो। इस तरह से लोगों को थोड़ा भड़काने वाला जैसे भी बात निकलता है। ठीक है, अच्छा करना है, लेकिन दूसरों को गुमराह बना के नहीं।
तो इसीलिए माइंड ट्रेनिंग किस तरह से सोचना है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो माइंड को जैसे कि सोच एक ले करके उसको बार बार आप सोच में लेते जाएगा, आप ध्यान करते जाएगा, उसका प्रभाव होना शुरू करेगा। जैसे कोई बहुत गुस्सा होता है तो आप कोशिश करो ना, क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूँ। अगर ध्यान करेंगे तो गुस्सा कम होगा। पहला तो जैसे गुस्सा होगा आप तुरंत उसको रिएक्ट मत करो, तुरंत ये अरे मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, तुरंत उसको प्यार करो बोलने से आप नहीं सकेगा। लेकिन गुस्सा को थोड़ा ठंडा करने के लिए अरे मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ बेकार में, फिर आप छानबीन करो ना, तब पता लगेगा अरे यार बेकार में मैं तो गुस्सा हो रहा। इसके बाद फिर उनके प्रति आप प्यार और करुणा जगा सकते हैं। तो जब तक सोचेंगे नहीं है तब तक आपके मन का दरवाजा बंद है। जब आप सोचना शुरू करेगा तो वो दरवाजा खुलेगा। तो इसलिए सोचो, ध्यान करो, तब सोचते सोचते अच्छी सोच को बार बार दिमाग में लेके रखो तो उसकी दिशा में आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगा। 2-4 मंत्रा का ये करेंगे तो आप लोग दोहरा दीजिएगा। सबसे पहले संख्य चुमते देखा थेंगा, मतलब भगवान बुद्ध जी का नाम जप करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कहीं आगे भी कहीं पूछा था, हम पहले तो चमटू करते हैं ना, और हम लोग बुद्धिस्ट होने के नाते भगवान बुद्ध ही सबसे मतलब ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। वही तो हमारे गुरु जी हैं, वही तो हमारे सब कुछ है। लेकिन उनके नाम जप नहीं करते हैं बहुत लोग, तो इसलिए उनका नाम को जप करिएगा तो बहुत अच्छा होगा।